मम्मी पापा Recording in progress. Okay, online students, is the audio clear? If you can hear me, just type yes in the chat. Renu, Lucky, Ashok, Abhishek, Ajay, Ankita, everyone. Sakshi. Okay. So let's start. Okay, online students, the first thing you have to do, you have to type your name and your phone number in the messages. Online students, पहला काम करो, type your name and your phone number in the messages. Start doing it. जल्दी करो. Sakshi, Ankita, Aman, Ajay, Abhishek, Abhay, everyone, Nitish. Please type your name and your phone number in the messages. Everyone. Jaldi karo, then we'll start the lecture. Komal, Ramu, everyone, please type your name and your phone number. Let's start the class. Jaldi karo. Chalo, everyone, please type your name and your phone number. I am starting the lecture. So, hello everyone. My name is Anurag Singh, and this is the demo lecture for the Code of Civil Procedure. ठीक है? देखो, पहली चीज जो हमें CPC के बारे में समझनी है, that is the importance of CPC. So we need to understand the importance of CPC. The laws can be mainly divided into two categories. That is criminal, which will consist of IPC and CRPC, right? इसके अलावा हम लोगों को criminal law और कुछ नहीं पढ़ना होता. Every other law that we can think of will fall under the civil category. It can be contract, or it can be the Transfer of Property Act, or it can be the Hindu laws, or it can be the Muslim laws, or it can be tort, registration, limitation, partnership, sale of goods act, every other law. Sale of goods act, even constitutional law will fall under the civil category. ठीक है? So the point is that civil is much more broader than criminal. So not an exaggeration to say that 90% of the laws fall under the civil category, right? और ये 90% of the laws को regulate करने के लिए there is only one CPC, right? Only one law regulates these 90% of the कि CPC, अगर आपको लॉ समझना है तो आपको CPC समझना पड़ेगा. विदाउट CPC लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहेगी तो बट बहुत ही बेसिक लेवल की रहेगी, राइट? चलो, अब देखो, ये था फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देखो, इन द प्रीलिम्स एग्जाम you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC. This is one of the major subjects, और इसीलिए you are going to get somewhere between 15 to 20 questions. In the mains exam, देखो, mains में there will be a separate paper on procedural law, right? And in this you will be getting questions from CPC, CRPC and the Indian Evidence Act, right? यहाँ पर भी देख सकते हो that 1/3 weightage is still given to the CPC. Now in some mains exam, not all, in some mains exam आपको plaint भी लिखनी पड़ेगी, written statement भी लिखना पड़ेगा, and in some exams judgment writing भी करनी पड़ती है, right?
याद रखना कि प्लेन तभी लिख पाओगे जब सीपीसी आती है, रिटन स्टेटमेंट भी तभी लिख पाओगे जब सीपीसी आती है, एंड सेम इज द केस विद जजमेंट राइटिंग, कि ये भी तभी कर पाओगे जब सीपीसी आती है। तो देखो दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने देख लिया कि अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 90% लॉस सिविल है इसीलिए सीपीसी समझना चाहिए। बट देखो सीपीसी की इंपॉर्टेंस समझना इजी है, सीपीसी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नाउ देखो सीपीसी को समझने के लिए द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड सीपीसी इनटू टू पार्ट्स। याद रखना, वी हैव टू डिवाइड सीपीसी इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। राइट, सीपीसी को क्या करना है, पहला काम क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड सीपीसी इनटू सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। नाउ व्हाट आर सेक्शंस एंड व्हाट आर ऑर्डर्स? Sections are the general principles or the cause of action. Sorry, not the cause of action. General principles or the broad framework of the cause of action, or the broad framework. They never go into details. Sections में आपको details नहीं मिलेगी। ये क्या करते हैं, बस आपको general principles या broad framework बता देते हैं। Orders, on the other hand, these are the real elaboration of proceedings, right? And this is actually the place where you are going to get the details. ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड सीपीसी इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, सेक्शंस में एंड ऑर्डर्स में। सेक्शन आपको बस फ्रेमवर्क बता देते हैं, अंदर की डिटेल्स नहीं बताते। डिटेल्स के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑलवेज इन दी ऑर्डर्स। ठीक है, तो सेक्शन और ऑर्डर्स पहले हम लोग ये चीज डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाई इज दिस नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है? देखो, फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, नॉट एवरी सेक्शन बट फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन there will be a corresponding order। ठीक है, एक सेक्शन का एक corresponding order होगा। तो सीपीसी को पढ़ना कैसे है, we have to study the section and then directly jump to the corresponding order। ठीक है, कभी भी सीपीसी को सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज मत पढ़ना, सेक्शन वाइज भी नहीं पढ़ना है एंड ऑर्डर वाइज भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है हम लोगों को, वी हैव टू स्टडी द सेक्शन एंड देन डायरेक्टली जंप टू द ऑर्डर। इस तरह से पढ़ना है सीपीसी। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन सीपीसी। ठीक है, चलो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। जैसे अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका एक सेक्शन होगा एंड उसका एक ऑर्डर होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स से आप पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, इसके लिए चाहिए होगा सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। अगर मान लो आप समन्स पढ़ रहे हो, लेट्स से समन्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो समन्स के लिए चाहिए होगा आपको सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5। तो अगर आप मान लो जजमेंट पढ़ रहे हो कि व्हाट इज द जजमेंट और उसकी वो क्या होती है, डिटेल्स क्या होती है, सेक्शन 35 and order 20। राइट, अगर आप लोग मान लो वो पढ़ रहे हो, लेट्स से एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हो, एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 36 to 74 and order 21। अगर मान लो अपील्स पढ़ रहे हो, अपील्स, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा सेक्शन 96 to 100 and order will be order 41। राइट, अगर मान लो हम लोग रेफरेंस पढ़ रहे हैं, रेफरेंस, इसके लिए सेक्शन होगा 113 एंड ऑर्डर होगा ऑर्डर 46। अगर मान लो हम लोग रिव्यू पढ़ रहे हैं, रिव्यू के लिए सेक्शन होगा 114 और ऑर्डर 47।
ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम लोग इंटरप्लीडर सूट पढ़ रहे हैं, इंटरप्लीडर सूट्स, तो उसके लिए सेक्शन होगा सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35। ठीक है, देखो these are just few examples of a section which have a corresponding order, right? तो सीपीसी में याद रखना कि सेक्शन क्या करेगा, हम लोगों को बस ब्रॉड फ्रेमवर्क बता देता है, लेकिन डिटेल्स के लिए हम लोगों को ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट दिस पॉइंट कि हम लोगों को सीपीसी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आवर टॉपिक फॉर दिस डेमो लेक्चर विल बी इंटरप्लीडर सूट्स, और इंटरप्लीडर सूट्स के लिए सेक्शन इज सेक्शन 88 and the order is, the video is not clear, it's stopping in between. Okay, online students, is my audio and video clear? Is there any lag? Is my audio and video clear? कोई प्रॉब्लम है उसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन क्लियर है? नो प्रॉब्लम। ओके ओके, क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो हम लोग को इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है, द टॉपिक इज इंटरप्लीडर सूट्स, राइट? चलो इंटरप्लीडर सूट के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी गो इनटू द सेक्शन, पहले हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के लिए, फ्रेमवर्क के लिए, फिर हम लोग ऑर्डर में जाएंगे डिटेल्स के लिए। ठीक है, बट बिफोर वी गो इनटू द सेक्शन हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एंड प्लीज पे अटेंशन टू दिस एग्जांपल बिकॉज पूरा लेक्चर जो है वो इसी एग्जांपल पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलो सपोज देयर इज अ पर्सन ए हु इज द ओनर ऑफ अ हाउस, एंड ए ने अपना घर दे दिया है डी को फॉर सेफ कीपिंग। ठीक है, A has given his house to D for safekeeping. Now, what happens is A also says that I will give you rupees 10,000 per month to do this job, and also I will pay any kind of repair costs or maintenance charges. जो भी लगेंगे मैं वो सारा के सारा आपको पे करने को रेडी हूँ। घर की रखवाली करने के लिए आपको मैं इतने पैसे दूंगा, और जो भी चार्ज लगेगा या कॉस्ट लगेगा मैं वो सब कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ, राइट? अब देखो A has two children B and C. Now what happens is A dies without leaving a will. Without leaving a will. ठीक है? Now as soon as A dies, B and C they start fighting over the property. ठीक है? A मर गया, प्रॉपर्टी थी D के पास, B और C फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। What happens is कि B जाता है D के पास और बोलता है I am the owner of this house. I am the owner of this house. ठीक है, ऐसे ही C भी जाता है D के पास और बोलता है I am the owner of this house. दोनों ही डी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये घर मेरा है, और सी बोलता है कि ये घर मेरा है। ठीक है, यहाँ पर जो डी की सिचुएशन है इसको अच्छे से समझना। डी सिचुएशन, डी सबसे पहले क्या कहता है कि आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पहला काम वो क्या बोलता है कि आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पहला काम। सेकेंड चीज वो बोलता है दैट I only want my charges and costs. जो भी मुझे बोला गया था कि मुझे मिलेगा वो मुझे दे दिया जाए। तो मेरा प्रॉपर्टी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने चार्जेस और कॉस्ट चाहिए। ठीक है, थर्ड वो बोलता है कि I am ready to give the house
to the rightful claimant, कि आप में से जो भी सही क्लेमेंट होगा मैं उसे घर देने को रेडी हूं. बट प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता नहीं है कि राइटफुल क्लेमेंट कौन है. बट आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट. राइट, देखो यहां पर सिचुएशन समझो. ए का घर जो है वो डी के पास है फॉर सेफ कीपिंग. ए डाइज, देन बी एंड सी, एज चिल्ड्रन, दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टी. बी कहता है डी से ये घर मेरा है, सी कहता है डी से भी कि ये घर मेरा है. ठीक है, यहाँ पर डी की सिचुएशन ऐसी है, वो कहते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो मेरे पैसे मिलने चाहिए थे मुझे बस वही चाहिए, और जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा मैं उसे देने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि इन दोनों में से राइटफुल क्लेमेंट कौन है. ठीक है, यहाँ पर डी जाता है, ध्यान देना, D goes and files a suit against B and C, both of them. जितने भी क्लेमेंट्स हैं दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर देगा वो. ठीक है, और यहाँ पर D जो है वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देगा कोर्ट को. राइट, जो चार चीजें हम लोगों ने बोली थी, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रॉपर्टी में, अपना पैसा चाहिए, वही सब. और कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कोर्ट विल अवॉर्ड D his charges and dismiss him from the suit. राइट, कोर्ट क्या करेगी, डी को उसके चार्जेस दे करके बोलेगी कि आप सूट छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर डी को उसके चार्जेस मिल गए तो उसे यहाँ पे सूट पे रहने का कोई मतलब नहीं. और दूसरा काम क्या करेगी कोर्ट, बी या सी में से, बी और सी दोनों में से किसी एक को वो उठा करके प्लेंटिफ बना देगी. तो डी अब जा चुका है, ये सूट या तो बी वर्सेस सी हो जाएगा या फिर सी वर्सेस बी हो जाएगा. तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे है कि वो किसे प्लेंटिफ बनाएगी. और जब कोर्ट ने ये काम कर दिया है, इसके बाद जो है जो सूट विल गो ऑन इन एन ऑर्डिनरी मैनर. ऑर्डिनरी मैनर में चलेगा, बी और सी प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेंगे और कोर्ट फिर डिसीजन देगा कि ये किसका होगा. ठीक है, यहां पर जो डी ने सूट फाइल किया था बी और सी के अगेंस्ट, ये वाला सूट जो है इसी को हम लोग कहते हैं एक इंटरप्लीडर सूट. ठीक है, इंटरप्लीडर सूट. यहां पर याद रखना है कि इंटरप्लीडर सूट में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में नहीं होता. कॉन्फ्लिक्ट, रियल कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, डिफेंडेंट्स के बीच में है. प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया है उसका नहीं, उसको अगर उसके चार्जेस मिल जाते हैं तो उसे वो छोड़ के जा सकता है. हाँ, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, he will be dismissed from the suit. ठीक है, यहां तक एवरीवन एग्जांपल क्लियर है. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज द एग्जांपल क्लियर? यहां तक एवरीवन, साक्षी, रामू, विकास, श्याम, अभिज्ञान, अभय, एवरीवन, अंकिता, खुशी, एवरीवन, एग्जांपल इज क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द बेयर एक्ट. अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 88 में. लेट्स गो टू सेक्शन 88. तो सेक्शन 88 क्या कह रहा है, इंटरप्लीडर सूट्स. और ध्यान से पढ़ना इसे, इंटरप्लीडर सूट्स. सेक्शन 88, वेयर इंटरप्लीडर सूट्स मे बी इंस्टीट्यूटेड वेयर टू और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर. क्या लिखा है, वेयर टू और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर. ये कौन है, ये टू और मोर पर्सन्स क्लेमिंग एडवर्सली टू वन अनदर? ये है हमारे एग्जाम्पल में बी और सी, यही क्लेम कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के अगेंस्ट. ठीक है, आगे देखो, द सेम डेट्स, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल. कोई भी प्रॉपर्टी हो, डेट हो या कोई मनी हो, मूवेबल इमूवेबल, हम लोगों ने इमूवेबल का एग्जांपल लिया था. उसके बाद फ्रॉम अनदर पर्सन, सो बोथ ऑफ दीज पर्सन्स आर क्लेमिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन. ये अनदर पर्सन कौन था हमारे एग्जांपल में, किससे क्लेम कर रहे थे वो लोग? बी और सी जो है वो घर जाकर के किससे क्लेम कर रहे थे, डी से. राइट, राइट. तो दिस पर्सन वाज डी. नाउ डी हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन. डी बोलता है ना, आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट. आई ओनली वांट माय चार्जेस और कॉस्ट. ठीक है, एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट. यहां पर याद रखना कि जो डी की सिचुएशन हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी, डी क्या कहता है, आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, आई ओनली वांट माय चार्जेस एंड कॉस्ट.
आई एम रेडी टू गिव द हाउस टू द राइटफुल क्लेमेंट, बट मुझे यही नहीं पता कि राइटफुल क्लेमेंट कौन है। वही चीज यहाँ पर भी है, that and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. D is ready to give it to the rightful claimant. Such other person, ये such other person कौन है? D है। Such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants. जितने भी claimants होंगे उनके against जो suit file करेगा D, तो D ने जो suit file किया था वो B और C दोनों का against होगा, ये किसी एक के नहीं होगा। अगर मान लो वो 3 होते बी सी डी, अब सॉरी मान लो बी सी एफ होते 3, तो वो बी सी एफ तीनों के अगेंस्ट होता, ठीक है। सो ही विल फाइट अ सूट ऑफ इंटरप्रेटर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड। किसे दिया जाएगा, कि यहाँ पर अगर याद हो डी ने अपनी सिचुएशन में ये कहा था बट आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट, तो यही उसका पर्पस बन जाएगा। So the purpose of the suit is कि कोर्ट ये डिटरमाइन करे कि who is the rightful claimant जिसे कि वो पेमेंट या डिलीवरी मिलेगी। एंड लास्टली दिखा है and of obtaining indemnity for himself, obtaining indemnity for himself। यहाँ रखना, यहाँ पर जब कोर्ट ने डी को उसके चार्जेस दे दिए हैं और डिसमिस कर दिया है सूट से, दिस इज डी obtaining indemnity for himself, कि अब मेरा इस सूट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे चार्जेस और कॉस्ट मिल चुके हैं, ठीक है। चलो सेक्शन 88 मेन पार्ट समझ में आया एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेक्शन 88 का मेन पार्ट क्लियर है एवरीवन? जतिन, अशोक, शिल्पी, साक्षी, अभिज्ञान, कोमल, अभय, क्लियर है? ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर इसके प्रोवाइजो पे चलते हैं। देखो प्रोवाइजो क्या कहता है, देखो प्रोवाइजो पढ़ेंगे अभी। देखो प्रोवाइजो ये कहता है कि मान लेते हैं कि बी जो था उसने एक केस कर रखा था सी और डी दोनों के ऊपर, एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग था, बी ने सूट कर रखा था सी और डी के ऊपर, राइट। अगर ऐसा कोई सूट पेंडिंग है जहां पर की सारी पार्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पर अगर डी चाहेगा कि एक सूट ऑफ इंटरप्रेटर अगेंस्ट बी एंड सी के अगेंस्ट वो फाइल करना चाहे, तो दिस सूट विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि सारी पार्टी जब यहाँ पर है तो आपको दूसरे सूट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यही चीज प्रोवाइजो कह रहा है। देखो प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्रेटर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। तो अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है जिसमें सारी पार्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, तब सूट ऑफ इंटरप्रेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन 88 एवरीवन क्लियर, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन, लकी, साक्षी, कोमल, अशोक, शिल्पी, सेक्शन 88 का मेन पार्ट जो है वो हम लोग अभी हम लोगों ने किया है यहाँ तक एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? देखो अभी जो हम लोगों ने किया है, सेक्शन किया है, और सेक्शन क्या करता है, हम लोगों को सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स बताता है, कभी भी डिटेल्स में नहीं जाता। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों से यहाँ बोला कि कोर्ट जो है वो बी और सी में से किसी एक को उठा करके प्लेंटिफ बना देगी और सूट जो है ऑर्डनरी मैनर में आगे चलेगा। ये चीज सेक्शन 88 में नहीं आई है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को डिटेल्स के लिए अब कहाँ जाना पड़ेगा, ऑर्डर 35, हम लोगों को ऑर्डर जाना पड़ेगा। ऑर्डर 35 की हेडिंग क्या है, इंटरप्लीटर। तो सेक्शन 88 तो हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग को क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए, जिसके लिए हम लोग ऑर्डर्स में जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर 35 में रूल 1 देखो क्या लिखा है, इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीटर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स, याद रखना, इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स। एक प्लेंट में जो स्टेटमेंट नेसेसरी होती है उसके अलावा उससे कुछ चीजें लिखनी होंगी। तो पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि एक प्लेंट में नेसेसरी चीजें क्या क्या होती हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेंट, बताओ एनीवन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेंट? नहीं बताओ। सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, इसमें प्लेन डिफाइंड है कहीं? सीपीसी में प्लेन डिफाइंड नहीं है, ये जान लो, कहीं नहीं।
सेक्शन 6, सेक्शन 7 नहीं, ऑर्डर 7 में। हाँ ठीक ठीक है। और नाम क्या है? शादाब अहमद। ओके शादाब, ऑल्दो भी तुम्हारी बात सही है कि उसके कंटेंट्स वहां बताए गए हैं, बट देखो प्लेन की डेफिनेशन जो है कंटेंट्स के लिए अगर हम लोग वहां जाना चाहे तो जा सकते हैं, बट स्टिल देखो एनी प्लेन, ध्यान देना इस पे, एनी प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लेन इज गोइंग टू कंटेन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या क्या चीजें आएंगी? नेम्स ऑफ द पार्टीज, सबसे पहले आएंगी क्या? नेम्स ऑफ द पार्टीज। सेकेंड आएगी हमारी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वुड बी द कॉज ऑफ एक्शन। तो प्लेन का सबसे पहला पार्ट क्या होगा? फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे, जिसमें कि हमारे नेम्स ऑफ द पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द कॉज ऑफ एक्शन होगा। सेकेंड पार्ट होगा टेक्निकल प्लीडिंग्स, टेक्निकल प्लीडिंग्स, टेक्निकल प्लीडिंग्स लाइक लिमिटेशन, jurisdiction और valuation, ठीक है। टेक्निकल प्लीडिंग्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। किस पे बैठूंगी? तूने इस पे ये रख दिया। मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, ठीक है। मान लो कि फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेट्स से, लेकिन द सूट इज आउटसाइड द लिमिटेशन पीरियड, राइट, तो प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी। और लेट्स से ज्यूरिसडिक्शन अगर मान लो दिल्ली कोर्ट का बनता है और प्लेन में मैं फाइल कर रहा हूँ मुंबई कोर्ट में, मुंबई कोर्ट बोले कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो आपको इसलिए वहां ज्यूरिसडिक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। चलो शादाब बताओ प्लेन के एंड में क्या होता है? बताओ। अरे सिग्नेचर नहीं होता है सिग्नेचर, लेकिन वो अलग चीज है। प्लेंट ऑलवेज एंड्स विथ अ रिलीफ। रिलीफ को हम लोग वहां क्या लिखते हैं? या राइट, प्रेयर क्लॉज, याद है? प्रेयर हमेशा एंड होती है प्रेयर से, राइट। रिलीफ क्लेम, जीपी, जो भी तुम्हारा नाम हो, तुमने जीपी लिख रखा है बस, रिलीफ क्लेम, राइट। देखो एनी प्लेंट, आई एम सेइंग दिस अगेन, एनी प्लेंट चाहे वो 8 पॉइंट्स की हो चाहे 800 पॉइंट्स की हो, इन 3 पार्ट्स में हमेशा ही डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस, टेक्निकल प्लीडिंग्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट एंड द रिलीफ क्लेम, ऑलवेज। इस चार्ट से ही शादाब क्या हम लोग बना सकते हैं प्लेन की डेफिनेशन? अच्छा चलो, अगर मैं बोल रहा हूं तुम बस बोलना कि यस और नो, ठीक है। अ प्लेन is a written document submitted by a person who has approached the court, which contains facts of the case like names of the parties, the description of the property involved, and the cause of action. It also contains technical pleadings relating to the maintainability of the suit like limitation, jurisdiction, and valuation. And it ends with a relief which is in the form of a prayer where the person seeks the remedy from the court. Right? देखो यही हो गई प्लेन की डेफिनेशन। आप और भी बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज कोई भी प्लेन हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, ये सारी चीजें उसमें हमेशा ही रहेंगी, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये चीज यहाँ पर क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम लोगों को देखना था एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेन, क्योंकि ऑर्डर 35 का रूल 1 वो बोलता है कि इन एडिशन टू the other statements necessary for plates, तो ये तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा और क्या होनी चाहिए? स्टेट नंबर 1 क्लॉज ए that the plaintiff claims no interest in the subject matter in dispute other than for charges or costs। पहली बात, who is the plaintiff here? हमारे एग्जाम्पल में प्लेंटिफ कौन था? बी और सी तो उस टाइम पे डिफेंडेंट थे। देखो यहाँ पर प्लेंटिफ कौन था? डी था, राइट। हाँ, डी ने फाइल किया था, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो प्लेंटिफ को ये अपना देना पड़ेगा कि प्लेंट में लिख के देना पड़ेगा कि आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, ठीक है।
clause B, it says the claims made by the defendants severally. इसका क्या मतलब हुआ? Claims made by the defendants, अच्छा पहली बात defendants कौन है यहाँ पर? B and C दोनों होंगे, right? Claims made by the defendants severally, severally का क्या मतलब होगा? अलग अलग, ठीक है? severally को हमेशा कैसे पढ़ा करो? Separately, ठीक है? हाँ, इंडिविजुअली, जीपी इंडिविजुअली भी कह सकते हो, सेपरेटली भी। तो जो यहाँ पर उन लोगों ने किया था, दैट बी जाके डी से बोलता है कि आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, और सी बोलता है आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, दिस इज द क्लेम मेड बाय देम सेवरली या इंडिविजुअली, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लॉज सी, दैट देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्यूजन? नहीं, वो तो कोलिजन होता है। कोल्यूजन, मिली भगत, एग्जैक्टली। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्यूजन? कोल्यूजन इज मिली भगत। तो वहां पर डी को ये भी देना पड़ेगा कि मेरा किसी के साथ, किसी भी डिफेंडेंट के साथ कोई मिली भगत नहीं है। तो याद रखना, प्लेंट के जो हम लोगों ने एसेंशियल्स किए हैं अभी यहाँ पर, देखो ये हम लोगों ने किए थे प्लेंट के एसेंशियल्स। इसके अलावा क्या क्या चीजें रहेंगी? पहला डी क्या बोलेगा? आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, I have no personal interest and I only want my charges and cost. Only charges and cost चाहिए मुझे, ठीक है? पहली चीज। दूसरी बात वो क्या बोलेगा? That B and C came individually and claim the property. Came individually, ठीक है? And third, I have no collusion with any of the defendants, ठीक है? तो याद रखना कि इंटरप्रेटर सूट में जो प्लेंट जाती है वो एसेंशियल्स ऑफ द प्लेंट के अलावा हमारे साथ ये सारी चीजें भी वहां मेंशन रहेंगी, राइट? ए बी सी भी हमारे मेंशन रहते हैं, ठीक है? चलो नाउ लेट्स गो टू रूल 4। चलो रूल 4 में जाते हैं। देखो Rule 4, it says, Sub-Rule 1, at the first hearing, the court may, clause A, तो क्या लिखा है? Declare that the plaintiff is discharged from all liability to the defendants in respect of the thing claimed, award him his costs and dismiss him from the suit. अब देखो ये चीज ऑल्दो कि मैंने एग्जाम्पल में बता दी थी, लेकिन सेक्शन में नहीं थी ये चीज, राइट? ये डिटेल कहाँ पर मिली हम लोगों को? ऑर्डर में मिली है। या इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो सेक्शन में डिटेल्स नहीं होंगी, डिटेल्स कहाँ होंगी? हमेशा ऑर्डर्स में मिलती है, ठीक है? अब देखो ये चीज हम लोगों ने ऑल्दो की मैंने बताई थी कि कोर्ट क्या कर सकती है, इट कैन अवॉर्ड डी हिज चार्जेस एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट, ठीक है? हो सकता है। बट एक बात ये बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि डी एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में है जहां पर कि वो ए को भी जानता है और बी और सी को भी जानता है, ठीक है? सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस बन सकता है इस केस में? बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए ने डी से कुछ कहा हो, लेट्स से ऐसे ही बोल रहा हो कि बी मेरा लायक बेटा है, मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी उसी के पास जाए, सी के पास ना जाए। तो ये चीज तो बी यूटिलाइज करना चाहेगा ना हमेशा ही, ठीक है? देखो डी को ऑल्दो थियोरेटिकली हम लोग कह रहे हैं कि ही कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सूट, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ही शुड कंटिन्यू विद द सूट, क्योंकि वो बाद में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्लॉज बी देखो क्या कहता है, इफ इट थिंक्स दैट जस्टिस और कन्वीनियंस सो रिक्वायर, रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, ठीक है? तो थियोरेटिकली कोर्ट जो है उसे डिसमिस कर देती है, बट प्रैक्टिकली जो है एक्चुअली कोर्ट कभी डिसमिस नहीं करती है। जैसे मान लो कि अगर कोई सिनेमा हॉल चला रहा है, यहाँ पर तो हम लोगों ने हाउस लिया था, बट सिनेमा हॉल है या रेस्टोरेंट है, तो डी जो है उसका मैनर इसकी पोजीशन में है, वो कंटिन्यू करे अगर उस पोजीशन में तो ज्यादा अच्छा है उस प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी जो है वो अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है वहां से, उसको रिमूव करना सही नहीं होगा। इसीलिए थ्योरेटिकली कोर्ट जो है उसे डी को उसके चार्जेस और कॉस्ट देकर के डिसमिस कर सकती है, बट प्रैक्टिकली कोर्ट कभी नहीं करती है। ही कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द सूट, ठीक है? चलो सब रूल 3 पे चलते हैं। सब रूल 3 क्या कहता है, दैट वेयर द एडमिशंस ऑफ द पार्टीज डू नॉट एनेबल द कोर्ट सो टू एडजुडिकेट, it may direct that an issue or issues between the parties be framed and tried.
अगर कोर्ट डिसमिस नहीं कर सकती सूट को वहीं पर, तो कोर्ट क्या करेगी, एक इशू और या फिर इश्यूज फ्रेम करेगी और उन पर ट्रायल होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इशू? इशू क्या होता है? एनीवन? इशू फ्रेम करने की बात कह रहे हैं कि इशू बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड, बट व्हाट इज एन इशू? बताओ एनीवन? डिनाइड बाय द अदर, वेरी गुड। ठीक है, देखो ए और बी मान लेते हैं ऐसे, ये इशू का एग्जांपल है। लेट्स से ए बोलता है कि ये घर मेरा है, ही सेज दिस हाउस इज माइन। बी बोलता है दिस हाउस इज नॉट योर्स, इज नॉट योर्स। ठीक है, ए ने क्या किया, ही इज एजर्टिंग अ फैक्ट, वो एक फैक्ट को बोल रहा है कि ये है, और बी बोल रहा है उसी फैक्ट को कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इश्यूज अराइज, और ऑर्डर 14 के रूल 1 में एकदम क्लियरली लिखा है, इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट इज एजर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। ठीक है, अब इस देखो ये चीज ए अपनी प्लेंट में लिख के देता है, राइट, कि मेरा हाउस है, बी ऑक्यूपाई करके रखा है। बी बोलता है कि नहीं तुम्हारा हाउस नहीं है, राइट, इसलिए मैं इसके ऑक्यूपेशन में हूँ। ये चीज बी कहाँ लिखता है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, वो डिनाई करता है सारी चीज। ठीक है, अब देखो एक एजर्शन हुआ है इन द प्लेंट एंड देयर हैज बीन अ डिनायल इन द डब्ल्यूएस। दोनों के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, इश्यूज फ्रेम करते हैं। जैसे इस केस में there has been an assertion of the ownership of the house by A and there has been a denial of that by B. तो यहां पर issue क्या frame होगा, issue will be whether the house belongs to A. अब ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब इसी क्वेश्चन के आसपास जो है पूरा सूट का जो ट्रायल होगा वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पर, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए होगा। ठीक है, इसी चीज को यहां पर लिखा है दैट एन इशू और इश्यूज बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड। ठीक है, चलो, और क्लॉज बी, देखो क्या लिखा क्लॉज बी, दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ। याद करो, डी को अगर हम लोग कह दें कि तुम छोड़ के चले जाओ, तो बी या सी में से किसी एक को हम लोग प्लेंटिफ बना देते थे, राइट। वो चीज मैंने ऑल्दो के एग्जांपल में बता दी थी, लेकिन वो सेक्शन में नहीं था। वो डिटेल कहाँ पर है, ऑर्डर्स में है। डिटेल्स विल ऑलवेज बी इन दी ऑर्डर्स। सो एनी क्लेमेंट विल बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन दी ऑर्डिनरी मैनर, राइट। वहां पर मैंने देखो एग्जाम्पल में ये भी बताया था तुम लोगों को कि एक बार अगर वो राइट यहाँ पर डी को उसके चार्जेस देकर के वो डिसमिस कर सकता है एंड बाद में क्या करेगा, बी या सी में से किसी एक को वो प्लेंटिफ बनाता है एंड सूट गोज ऑन इन एन ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, चलो यहाँ तक एवरीवन बेसिक समझ में आ गए इंटरप्रेटर सूट के, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेसिक समझ में आ गए इंटरप्रेटर सूट के, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन। चलो अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, आई एम पुटिंग अप अ क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। ठीक है, अब है अभिज्ञान और जीपी, एवरीवन, लकी, कोमल, साक्षी, शिल्पी, एवरीवन क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, ये मैं एक सिचुएशन पुट अप करके दे रहा हूं और तुम लोगों को बताना है कि क्या होगा इसमें। देयर इज अ लैंडलॉर्ड एंड देयर इज अ टेनेंट। नाउ द टेनेंट हैज टू पे ₹10,000 पर मंथ, ठीक है, एज रेंट। नाउ क्या होता है कि एक दूसरा पर्सन आता है एंड बोलता है कि आई एम द रियल लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड नंबर 2 आता है और बोलता है कि मैं हूं रियल लैंडलॉर्ड। ओके ओके, राइट। लैंडलॉर्ड नंबर 2 आता है और बोलता है कि आई एम द रियल लैंडलॉर्ड, और ये बोलता है कि ये जो रेंट है ये एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए। और लैंडलॉर्ड वो तो वो पहले से बोल ही रहा था कि ये रेंट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, यहां पर ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर। जितने लोगों ने कर दिया है तुम नहीं, जितने लोगों ने नहीं किया है तुम लोग प्लीज कम विथ योर रियल नेम्स एवरीवन। ठीक है,
चलो, लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड 1 एंड लैंडलॉर्ड 2 दोनों ही रेंट डिमांड कर रहे हैं टेनेंट से, ठीक है। लैंडलॉर्ड 1 ने एक्चुअली दिया था उसे। चलो, यहां पर ये बताओ कि कैन द टेनेंट फाइल अ सूट of interpleader against landlord 1 and landlord 2 for the rent? कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखो, सिचुएशन समझ में आ रही है ना। एक लैंडलॉर्ड था, उसने अपने यहाँ एक टेनेंट रखा, अब बोला कि 10,000 रुपीज पर मंथ आप रेंट दोगे, राइट। तो एक दूसरा पर्सन आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ रियल लैंडलॉर्ड और तुम्हें जो रेंट पे करना चाहिए वो मुझे पे करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बी और सी को देखा था कि बी और सी आर आल्सो क्लेमिंग द सेम प्रॉपर्टी, वैसे ही लैंडलॉर्ड 1 एंड लैंडलॉर्ड 2 दे आर आल्सो क्लेमिंग द सेम रेंट, ठीक है। क्या यहाँ पर टेनेंट लैंडलॉर्ड 1 एंड लैंडलॉर्ड 2 के अगेंस्ट कैन ही फाइल अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है? चलो अच्छा, मान लेते हैं कि वो बोलता है कि मैं अपना कुछ रिपेयर वर्क उसने कराया था तो मैं 2000 माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? आप, हम लोग भी घर में रिपेयर कराते हैं तो लैंडलॉर्ड से कहते हैं ना कि हम 2000 रुपए कम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताओ करेगा या नहीं करेगा? रिक्वायरमेंट तो आई थिंक फुलफिल कर रहा है। तुम लोग तो खैर देर से आए थे, बेसिक्स समझ में आए थे इंटरप्रेटर सूट्स के थोड़ा सा। अच्छा चलो, ओके, यस ही कैन, ओके ठीक है। देखो एक बात जान लो, जितने लोगों ने ये सोचा कि रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो रही है तो होना चाहिए, तुम्हारा लॉजिक तो सही है, बट होता क्या है कि टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता इंटरप्रेटर सूट, और एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता इंटरप्रेटर सूट्स, ऑल्दो कि वो लोग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं फिर भी, ठीक है। ये चीज एकदम रूल 5 में, हाँ एग्जैक्टली, शार्दुल को मिल गया। रूल 5 अभी मैंने बताया नहीं था, रूल 5 एकदम क्लियर लिखा है, एजेंट्स एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्रीटर सूट्स, एकदम क्लियर, ठीक है। वहां पर लिखा है नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट्स टू सू देयर प्रिंसिपल्स और टेनेंट्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब देखो व्हाई, लेकिन ऐसा क्यों होता है? एनीवन रीजन? देखो ये याद रखना कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं बट फिर भी रूल 5 उन्हें प्रिवेंट कर देता है कि आप नहीं कर सकते, राइट। व्हाई, ऐसा क्यों होता है बताओ? There is a provision in the Indian Evidence Act. नहीं, रूल 5 तो यस शार्दुल, सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो क्या बात करता है? स्टॉपेल की, और स्टॉपेल ऑन टेनेंट्स। वो बोलता है कि अ टेनेंट कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड, एकदम क्लियरली लिखा है वहां पर, अ टेनेंट कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड। और ये जो रूल ऑफ स्टॉपेल है यही बोलता है कि अगर यहाँ पर, हाँ एग्जैक्टली शार्दुल, वही चीज मैं बता रहा हूँ, टाइटल डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर टेनेंट कह रहा है कि मैं रेंट किसे पे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, वो डिनाई कर रहा है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ इसका रियल लैंडलॉर्ड या रियल टाइटल किसके पास है, ठीक है। इसीलिए रूल 5 जो है वो कहता है कि टेनेंट्स जो है they cannot file a suit against their landlords। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है एजेंट और प्रिंसिपल के लिए भी 184 में वहां पर प्रोविजन है कि एजेंट जो है दे आर, क्योंकि एजेंट किसकी अथॉरिटी पे काम करता है? जो प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी है वो उसी अथॉरिटी पे काम करता है, ठीक है। तो याद रखना कि रूल 5 जो है, रूल 5 बहुत क्लियर है, वो बोलता है कि टेनेंट्स और एजेंट्स, टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को सू नहीं कर सकता और एजेंट अपने प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता, ठीक है। देखो इंटरप्रीटर सूट जो है, ऑल्दो कि जो हम लोगों ने लिया है ये समझने के लिए तो इजी है, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखोगे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल
कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या टेनेंट लैंडलॉर्ड इन सब का नहीं आता। सबसे ज्यादा इंटरप्रेटर सूट्स कहाँ फाइल होते हैं? गेस करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंटरप्रेटर सूट्स कहाँ फाइल होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो, सबसे ज्यादा इंटरप्रेटर सूट्स फाइल करते हैं बैंक्स, ठीक है। बैंक्स में जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हो, वहां पर एक सेक्शन होता है जो कि अक्सर लोग छोड़ देते हैं अपना फॉर्म फिलअप करने में, नॉमिनी का सेक्शन होता है। भी है, बढ़िया भी है। अगर आप मर गए तो आपका पैसा किसे जाएगा? अक्सर लोग वो अकाउंट वो लाइन है वो छोड़ ही देते हैं। इसको अगर हो जाए, सपोज ए है, ए के अकाउंट में लेट्स से 20 लाख रुपीस है, ठीक है। अब ए ने नॉमिनी वाला सेक्शन जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया था एंड ए डाइज, ठीक है। अब ए के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब आकर के क्लेम करना स्टार्ट करेंगे कि ये मेरे फादर थे या मेरे भैया थे, जो भी थे, या मेरे हस्बैंड थे, सब ऐसा करेंगे। अब बैंक डज नॉट नो कि किसे देना है, राइट। बैंक वाला है कि ठीक है फैमिली मेंबर तो सब है, लेकिन ये पैसा किसे देना है तो वो बैंक नहीं डिसाइड करेंगे ना कि कितने हिस्से में कितना जाएगा। वहां पर मान लेते हैं कि बी, सी, डी एंड ई, ये 4 लोग आकर के एक ही प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। वहां पर बैंक जो है वो सूट फाइल करेगा अगेंस्ट बी, सी, डी एंड ई के अगेंस्ट। प्रैक्टिकल एग्जांपल, सबसे ज्यादा इंटरप्रेटर सूट कब फाइल होते हैं? जब बैंक, जब ये वाली सिचुएशन आती है तभी होते हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैंने कहा था कि ऑल्दो थियोरेटिकली भी बताया था कि कोर्ट जो है वो बैंक को अपने चार्जेस वगैरह दे देगी और उनसे बोलेगी आप सूट छोड़ के जा सकते हैं, और फिर बी, सी, डी, ई में से किसी एक को भी प्लेंटिफ बना देगी और बाकी सब डिफेंडेंट की तरह लड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैसा क्योंकि बैंक के पास है, इज इट नॉट कन्वीनियंट फॉर द कोर्ट कि उसको रखे सूट में? कि पैसा अगर आपके पास है बैंक में तो आप वहीं तक रखिए, सूट का आउटकम आएगा तब मैं जिसको बोलूंगा आप उसको उतना पैसा दे देना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आई थी, इफ यू वांट टू मेक दैट लिस्ट यू कैन। ये वाली लिस्ट जो बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, शादाब तुमने लॉ कहाँ से किया है? बीएचयू से। अच्छा, बीएचयू के हैं स्टूडेंट्स। कब पास आउट हुए? 22 में। अच्छा, अभी हुए। अच्छा, कौन से हॉस्टल में थे वहाँ पर? अच्छा, बनारस से ही होते? बनारस से ही होते? नहीं, यहाँ बीएचयू के और भी स्टूडेंट्स हैं। ये वाली चीज़ एवरीवन, मुझे लगा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बीएचयू, तो एक और लड़का है प्रकाश, वो भी बीएचयू का ही है, लास्ट ईयर उसने पास किया था। तुम्हारा काफ़ी बिहेवियर जैसे लग रहा है उसी की तरह है, प्रकाश की तरह, राइट। ओके एवरीवन, देखो ये मैंने पहले एक लिस्ट बनाई थी सेक्शन इन ऑर्डर की कॉरेस्पॉन्डेंस की। इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन यू कैन, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। बट देखो, ऑल्दो कि दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब सीपीसी पढ़ोगे आप कोई भी रैंडम सेक्शन उठा करके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। मान लो सीपीसी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करोगे कि सीधा अपील पे पहुंच जाओगे, 96 to 100 पढ़ा और सीधा उसके ऑर्डर 41 पे चले गए, नहीं।
ठीक है, और सेक्शन एंड ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस तो याद रखना है, बट उसके साथ ही हम लोगों को एक क्वेश्चन और पूछना है, दैट हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन, राइट। सो एक ऑर्डिनरी सूट रन कैसे करता है? सबसे पहले क्या होता है एक ऑर्डिनरी सूट में? फर्स्ट थिंग इज द फाइलिंग ऑफ द प्लेन। याद रखना, अ प्लेन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सूट। प्लेन फाइल करके ही आप सूट स्टार्ट करते हो, ठीक है। प्लेन, जब प्लेन फाइल हो जाती है तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? प्लेन फाइल करने के बाद अच्छा, तो डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट कोई सूट? समन जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? समन्स जाते हैं, राइट। समन्स के बाद देन द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड फाइल्स हिज रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों पार्टीज की, यस साक्षी, दोनों पार्टीज की रिटन सबमिशंस आ चुकी है हमारे पास। प्लेन भी आ गया, रिटन स्टेटमेंट भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इट विल बी अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन। याद रखना, दिस एग्जामिनेशन इज एन ओरल एग्जामिनेशन, जाएगा वहाँ ऊपर बैठ के, जब देगी ना वहीं लेगा ये। जो है फिर उसके बाद दोनों पार्टीज को बुलाती है और अरे अब स्कूल खत्म हो गया है, नीचे से जाके ले ले। कि जो आपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में जो भी चीजें आपने एडमिट की थी या डिनाई की थी, उसके बारे में कोर्ट उनको दोबारा से पूछती है, ये क्या आप यही कहना चाह रहे थे या देगा नहीं बिना साइन के। ठीक है, देखो आप पार्टीज की रिटन सबमिशन हो गई, कोर्ट ने ओरल एग्जामिनेशन भी कर दिया। नाउ द कोर्ट इज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, एग्जैक्टली क्या इनके बीच में प्रॉब्लम है। माँ बाप के साइन नहीं है, इसको After चाहिए। this, the next step is going to be the framing of issues, right? जब नेचर ऑफ डिस्प्यूट को कोर्ट को समझ में आ गया है, तभी हम लोग क्या करेंगे? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, राइट। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देन द ट्रायल स्टार्ट्स। याद करो, उसमें भी इंटरप्रिटेशन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इश्यूज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड, राइट। तो इश्यूज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड। ट्रायल के एंड में क्या होता है? ट्रायल कैसे एंड करते हैं? ट्रायल के एंड में क्या होता है? अब कब कहेंगे कि हाँ ट्रायल हो गया, खत्म? जजमेंट एंड डिक्री आएगी। इतना हेजिटेट क्यों कर रहे थे? राइट, जजमेंट एंड डिक्री, राइट। आ गई, ये हो गया सूट। हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन? डिक्री का देखो, विनिंग पार्टी क्या करेगी? विनिंग पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, राइट। और जो लूजिंग पार्टी है वो अपील करना चाहेगी, ठीक है। सो डिक्री के बाद दो कोर्स ऑफ एक्शंस पॉसिबल है। वन इज एग्जीक्यूशन, जो विनिंग पार्टी करना चाहेगी, एंड लूजिंग पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर अपील, या फिर वो रिव्यू के लिए भी फाइल कर सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन द डिक्री वो रिविजन भी फाइल कर सकती है। अब हो गया ये कम, ठीक है। अब देखो, पहली चीज ये टाइमलाइन, इसमें ऑर्डर 7 इज प्लेन्ड, समन्स के लिए इट इज ऑर्डर 5 एंड रिटन स्टेटमेंट के लिए इट इज ऑर्डर 8। देखो, अगर हम लोग सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो सीपीसी क्या करता है? समन्स पहले भेजता है और प्लेन्ड बाद में भेजता है, राइट। तो सीपीसी तो उस तरह से अरेंज नहीं है जैसे कि एक ऑर्डिनरी सूट रन करता है। ये अरेंजमेंट हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, दिस इज अंडर ऑर्डर 10। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज अंडर ऑर्डर 14, एंड इसके बाद द ट्रायल इज अंडर ऑर्डर 18, जजमेंट एंड डिक्री अंडर ऑर्डर 20, एग्जीक्यूशन अंडर ऑर्डर 21, अपील अंडर ऑर्डर 41. Sir, what is cause of that? Okay. Review is under order 47. Order 47. अब क्या रिवीजन का तो कुछ कोई ऑर्डर नहीं था, दिस इज सेक्शन 150, ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता। याद रखना that the entire CPC can be studied on this timeline, ठीक है।
पहले ये टाइमलाइन बना लेना और फिर उसके बाद वो सेक्शन एंड ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस याद रखना, ठीक है। जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पर समझ में सिर्फ ऑर्डर 5 लिख रखा है, बट दिस शुड बी सेक्शन 27 रेड विद ऑर्डर 5। एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 36 to 74 रेड विद ऑर्डर 21। अपील के लिए इट शुड बी सेक्शन 96 to 100 रेड विद ऑर्डर 41। रिव्यू के लिए ऐसे ही सेक्शन 114 राइट। जजमेंट एंड डिग्री के लिए सेक्शन 35। ये सारे देखो, ये मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू, देखो सीपीसी जो है इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको पता है कि कैसे पढ़ना है। बिकॉज देखो कॉलेजेस में वो क्या करते हैं, वो सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर वाइज ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वाई कई बार तुम्हें लगता है कि हो क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। हाँ, अगर ये टाइम फ्रेम या ये टाइमलाइन आपके मन में है और तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़े कि पहले प्लेट पढ़े, फिर समझ पढ़े, फिर कंसीक्वेंस पढ़े, तब सीपीसी की सेंस बनती है। और उसमें भी हम लोगों को हमेशा सेक्शन एंड ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस याद रखना चाहिए, ठीक है। I will advise everyone to make this because you are not going to find this in any book. ये किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा, इसीलिए मैं कहूँगा इसे बना लेना। जिसने प्रैक्टिस वगैरह की है वही बता सकता है ये चीज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन, अभय, अभिज्ञान, अजय, साक्षी, शार्दुल, वंशिका, कोमल, everyone, please make this timeline because you're not going to find this in any book. And secondly, do you have any questions? Sir, which is the most important stage? Acha, most important stage of this? Most important stage of exam. Acha, exam. Acha, ठीक है, don't worry. 2 questions. So what is cause of action and what is the most important stage of the examination? चलो, I will answer both questions. पहले बना लो, जितने लोग बना रहे हो। चलो, तो let's address the first question, which is कि what is cause of action? चलो, cause of action. What is cause of action? Anyone? What is cause of action? Reason. Okay. Not wrong. Shut up. Reason for filing a suit. Not wrong. A very basic meaning, but ठीक है, हाँ मतलब समझ में आ जाएगा इससे। The cause is the reason and the action is the filing of the suit. बिल्कुल सही, ठीक है। Very basic meaning, but basic meaning पे तो काम नहीं चलेगा। जज बनना है भाई तो आपको टेक्निकल टर्म्स समझ में आना चाहिए। चलो, याद रखना, कॉज ऑफ एक्शन विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। और ध्यान देना इस पे, दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्न टुडे। नंबर 1 वुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड नंबर 2 द वायलेशन or the infringement of that legal right. ठीक है? There will be always 2 elements in a cause of action. The first one is going to be explain interpreters who would have पूरा लेक्चर तो भाई एक्सप्लेन ही किया। Please explain interpreters. So, cause of action will always have 2 elements, and the first one is going to be existence of a legal right, and the second one is going to be violation or infringement of that legal right. ठीक है? तो इसी तरह हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। सपोज A कह रहा है कि ये घर मेरा है and B is occupying that house. ठीक है? If A is the owner of the house, he has the right to possession. है या नहीं है? अगर ये कह रहा है कि मैं ओनर हूँ, उसके पास राइट टू